Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Ahmad Ali from Gorakhpur UP, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस की है, जैकोबिन चैप्टर से। If u is equal to x square plus y square plus z square upon x, v is equal to x square plus y square plus z square upon y, and w is equal to x square plus y square plus z square upon z, find Jacobin of x by z with respect to u v w। तो इसको हम फाइंड करने के लिए देखिए, ये हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको नहीं दे रखी, लेकिन यू वी डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो हम पहले जैकोबिन फाइंड करेंगे यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, और फिर हम इसकी वैल्यू को जो हमें से पूछी गई है वो हम निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ जैकोबिन वी कैन राइट हियर del u over del x, del u over del y, del u over del z। For v, del v over del x, del v over del y, del v over del z। Also for w, del w over del x, del w over del y, del w over del z। Now we put the value of u, v and w in here. After it we differentiate for this with respect to x partially, and when we partially differentiate, and I write here directly, when we partially differentiate u with respect to x, because value of u is equal to x square plus y square plus z square upon x, we can write value of u as u is equal to x square upon x, and separate from here y square plus z square upon x। तो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन x आ गया। अब इसको हम u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अलग से करके दिखा दे रहे हैं। x u का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, x का तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये x के लिए पार्शली डिफ्रेंशिएशन जो कि कर रहे हैं, तो y और z कांस्टेंट होंगे, तो y स्क्वायर और z स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएंगे, और यहाँ पर 1 अपान x का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि 1 अपान x है, इसको लिख सकते हैं x की पावर -1, और उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे जाएगी, और जितनी पावर होगी उसमें से एक और माइनस हो जाएगा, माइनस का 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस साइन इस वाले माइनस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, और इस पावर को प्लस करना है तो नीचे अपान में ले आएंगे एक्स स्क्वायर। तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू जो आई है मेरे पास, वो हम अपने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। ये वैल्यू आई है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अपान एक्स स्क्वायर। Now we have to find the value of del u over del y. For this, del u over del y, value of u is x square plus y square plus z square upon x. Since x is constant for y, so we take out 1 upon x from here and differentiate this value, means numerator, with respect to y. Since x is constant with respect to y, because we differentiate here partially with respect to y, so differentiation of x square with respect to y partially is equal to 0, but differentiation of y square is equal to 2y. Also same as z square, as like as x, this value is 0, so we get only 2y upon x, which is partial differentiation u with respect to x. So we write in place of del u over del x this value, del y over del x, 2 times y over x. Similarly, we have to find another differentiation of u with respect to z partially. So we have to find del u over del z. First of all, we put the value of u, which is h square plus y square plus z square upon x.
Similarly, x is constant with respect to z, so 1 upon x is taken out from here, and differentiate z, this value with respect to z, we find this on differentiating this value 0. What differentiation of z square with respect to z is 2z, so we get 2z over x. We write here 2z over x. Similarly, we can find all these values, so I write these values as you can find it, so I write directly these values: 1 minus x square plus z square upon y square, and 2z upon y, 2x upon z, and 2y upon z. 1 minus x square plus y square upon z square. अब हम चूँकि 3 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है, तो इसमें हम ये करें कि हर एक टर्म को एक जैसा अगर बना दें, चाहे वो रो में बन सके या कॉलम में, क्योंकि ये आसानी से कॉलम में बन जाएगा एक जैसा, और उसको हम कॉमन ले लेंगे ताकि 1 1 आ जाए। और जब एक ही रो में 3 1 हो तो 2 1 को एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के 0 बना लेंगे और एक्सपेंड कर देंगे, तो सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, जिसको सॉल्व करना आसान है। तो इस थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमने जैसे बोला कि किसी भी रो या कॉलम को एक जैसा बनाएंगे, तो हमने रो में करके देख लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि ये एक जैसा बने, तो हम कॉलम में ऐसा करेंगे कि देखेंगे कि अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर अपान एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ मिल रहा है कि हम अगर इसमें सॉरी यहाँ पर y अपान जेड वाई अपान एक्स का अगर मल्टीप्लाई कर दें इस C2 में, और यहाँ पर C3 में, ये नहीं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C3 में अगर हमने z अपन x से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को यहाँ पर आके ऐड कर दिया, तो हमको जो टर्म मिलेगा वो यहाँ पर तीनों में एक जैसा होगा, क्योंकि जो ऑपरेशन हमने यहाँ पर किया है वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, और हम देख रहे हैं कि एक जैसा बनेगा, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं अगले पेज पर। तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम इस वाले को तो हम करके दिखा देंगे, बाकी इस सिमिलरली इस तरीके से आप कर लीजिएगा, तो या इसको भी दिखा देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये थर्ड वाला आप कर लेंगे। तो इन दो को हम करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसे जोड़ना है, ऐड करना है, और जिस ऑपरेशन को हमने यूज़ करना है उसको हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं। यानी हम ऑपरेशन करेंगे C1 में ये ऑपरेशन करेंगे, C1 को तो ऐसे रखेंगे, C2 में मल्टीप्लाई कर देंगे y अपान एक्स का और फिर जोड़ देंगे इसमें। इसी तरीके से इस पूरे में पहले मल्टीप्लाई कर देंगे z अपान एक्स का और C3 से इसमें जोड़ देंगे। हालांकि इसमें चेंज होकर इसे लिखना नहीं होता कि मल्टीप्लाई करें y अपान z का या z अपान एक्स का, बदलाव जो होगा वो एरो से पहले जो लिखा C1 इसी में ही होगा, C2 और C3 जैसे लिखें एज इट लिख देंगे, बस हम जो मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे वो उसमें चेंज आएगा। तो इसी C1 को हम इस वाले कॉलम के 2 एलिमेंट को लिख के दिखा देंगे, जिस तरीके से ये होगा वैसे ये वाला हो जाएगा, तो आप कर लीजिएगा। तो पहले हम इसको करके दिखा रहे हैं कि इसमें ऐड करना है गैस को, इस C2 में मल्टीप्लाई करेंगे y अपन एक्स का और इसमें z अपन एक्स का इस वाले में जोड़ेंगे। तो इस टर्म को पहले हम लिख के दिखा देते हैं। तो ये वैल्यू है फर्स्ट वाली 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और हमने बोला था कि मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 अपान वाई 2 टाइम्स वाई अपान एक्स में वाई अपान एक्स है, तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से 2 टाइम्स जेड स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें ऐसा करें, अपान 1 करते हुए हम एलसीएम ले लें, इसको हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं, सवाल के अंदर नहीं कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे, आप भी रफ पे चाहे सॉल्व करके कर सकते हैं, और फिर एलसीएम दिया, ये एक्स स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो माइनस साइन इन दोनों के साइन को निगेटिव में बदल देगा, और पहले से मौजूद है 2 वाई स्क्वायर और प्लस का 2 जेड स्क्वायर।
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और 2 y² में से 1 y² माइनस होगा, 1 y² प्लस का बचेगा और 2z² में से 1z² माइनस का निकल जाएगा, तो प्लस का z² बचेगा अपान x²। तो ये फर्स्ट टर्म जो हमने यहाँ के लिए बताया था ये सॉल्व हो चुका है। तो इसको हम आगे अगले पेज पर ये लिख देंगे, यानी हमने C1 में C2 और C3 को ऐड किया है y/x और z/x से मल्टीप्लाई करके रिस्पेक्टिवली। तो अगले पेज पर हम इसको आगे इस डिटर्मिनेंट के बराबर एक डिटर्मिनेंट आ जाएगी जिसमें फर्स्ट टर्म हम बता चुके हैं x² + y² + z² अपान x² हो जाएगा। अब अगला टर्म जो हमें यहाँ पर लिख के दिखाना है, तो वही ऑपरेशन वही है, बस हमें लिख के दिखाना है आपको कि इसमें क्या होना है, कैसे होना है। तो ये हमारा जो था पहले से मौजूद वो 2x/y है और हम प्लस करके इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये तो टर्म ये था, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं y/x से। तो इस पहले वाले टर्म में 1 में मल्टीप्लाई होगा y/x, तो हमको मिलेगा ये y/x, हमें यहाँ से मतलब है। तो y/x मिलेगा, इसमें y/x इंटू करेंगे। यहाँ पर y/x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y एक कट जाएगा, तो यहाँ पर ओनली xy बचेगा और ऊपर ये माइनस का चल ही रहे हैं हमारे x² प्लस का z² और अपान में xy हो गया, क्योंकि y/x से मल्टीप्लाई किया तो एक y कैंसिल हो गया, एक नीचे y बचा, x का मल्टीप्लाई किया तो वो है। और फिर अब इस वाले टर्म में हमें z/x से मल्टीप्लाई करके भी इसमें जोड़ना है, जैसे कि ऑपरेशन शुरू में लिखा जा चुका है, यहाँ पर नीचे लिखा है जैसे कि वही ऑपरेशन चल रहा है पूरे इस कॉलम में C1 में चल रहा है, C2 को C3 में, इसको ऐसे लिखना होगा। तो अब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इसमें z/x का, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स z² हो जाएगा। अब इनमें एलसीएम ले लें हम, XY यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो y से y कैंसिल, x का ऊपर इंटू यानी 2x² मिलेगा प्लस x कैंसिल, y का इधर इंटू हो जाएगा, y² हो जाएगा। इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये ओपन करने के बाद में माइनस के हो जाएंगे दोनों, x² भी और z² भी, और xy कैंसिल टोटल, तो प्लस का 2z² आ गया। अब इसे प्लस माइनस करके लिख लें, लाइक टर्म को सॉल्व कर लें। 2x² में से x² माइनस होगा, x² बचेगा, प्लस का y² सिंगल है और 2z² प्लस का है और एक माइनस कम हो जाएगा, प्लस का z² बचेगा। तो इसको हम यहाँ पर अब सॉल्व हो गया है, इसको लिख लेंगे। इस ऑपरेशन के तहत हमने इसको किया है और इस सेकंड प्लेस के लिए किया है, यानी इसमें हमने y/x से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ा है, इसमें z/x से मल्टीप्लाई करके इधर जोड़ा, तो जोड़ने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है अगले पेज पर इसी प्लेस पर, यानी C2 में 2 प्लेस पे लिख देंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, यानी x² प्लस का y² प्लस z² अपान xy, और थर्ड वाला इस वाले जैसा ही है, तो इससे आप डायरेक्ट हम लिख देंगे, आप कर लीजिएगा x² प्लस y² प्लस z² अपान xz। अब बाकी जैसे कि हमने पहले बताया कि ऑपरेशन सिर्फ जो है वो C1 में हो रहा है, तो C2 और C3 में कोई चेंज नहीं है, तो जैसे पीछे था हमारा डिटर्मिनेंट, यानी 2 टाइम्स y/x और यहाँ पर 1 माइनस का x² प्लस का z², चाहे तो ब्रैकेट में लिख दें अपान में y² और 2y/z। अगला टर्म यहाँ पर 2z/x है और 2x/y और 1 माइनस x² प्लस y² अपान z² है। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये किया। अब इससे ये फ़ायदा मिला कि इस कॉलम में देखें कि ये जो न्यूमरेटर में नज़र आ रहा है पूरा कॉमन है, तो इस कॉमन को हम बाहर ले लेंगे। सिर्फ यही अभी हमें कॉमन नहीं लेना है, मतलब बहुत सी चीज़ें कॉमन दिख रही हैं तो उसे हम ब्रेक इस डिटर्मिनेंट से बाहर लेंगे। न्यूमरेटर में x² प्लस y² प्लस z² था, उसे हमने बाहर ले लिया। अब डिनोमिनेटर में भी हमें कुछ नज़र आ रहा है तो उसको भी यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से x² को बाहर ले लेंगे इस वाले रो से, तो यहाँ से x² यानी हमने बाहर निकाल लिया। लेकिन देखें कि x² बाहर निकाला, यहाँ तो x² नहीं था, तो ऊपर जाके x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो xy लिखेंगे हम 2 टाइम्स, ऐसे यहाँ पर भी x का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने x² बाहर लिया है, जबकि यहाँ पर सिर्फ x है और यहाँ से x² निकल जाएगा, जो बचेगा उसको लिख रहे हैं। अभी और भी हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर चूँकि हमने टोटल जो था उस पूरे को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरे को कॉमन ले लिया, तो 1 बचा। यहाँ से हमने x को बाहर लिया, x² को बाहर लिया, तो x का इंटू हो जाएगा, तो 2 टाइम्स xy मिला हमें।
हमको, और फिर इसके बाद यहाँ पर 2 टाइम्स जेड एक्स मिला, जैसे पहले बता चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर भी हम न्यूमरेटर वाला, चूँकि इस वाले कॉलम से बाहर लिया था तो पूरे से बाहर हो गया। अब लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स वाई बचा, इस एक्स वाई को भी हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे इस वाले रो से, यानी हम डायरेक्ट कॉलम में से भी सबको बाहर ले चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड को, और जो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं एक्स वाई और आपकी एक्स जेड होगा उसको थर्ड वाले रो में से कॉमन ले लेंगे। तो जो बचेगा उसको हम लिख रहे हैं, जैसे कि अभी बताया था कि एक्स वाई जब यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ, और ये पहले से कॉमन हो चुका कॉलम में तो सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पर। और इधर हमें करना है क्या, एक्स वाई को हमने कॉमन लिया तो यहाँ तो नहीं था, तो इधर इंटू हो जाएगा 1 में एक्स वाई का, और माइनस यहाँ से इस वाले फैक्टर में से, यानी टर्म में से जब एक्स वाई को बाहर लिया तो वाई तो था बाहर निकल गया, लेकिन एक वाई पावर बच जाएगी। एक्स नहीं था यहाँ पर, अपान में बाहर लिया जा रहा है तो एक्स का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पहले से मौजूद जो ब्रैकेट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। फिर अगला टर्म में यहाँ पर चूँकि हम एक्स वाई बाहर लिया था तो वाई तो बाहर दिख गया जाता हुआ, यहाँ पर वाई जो था वो तो दिख गया, लेकिन हमने एक्स एक्स्ट्रा में बाहर ले लिया है, यहाँ पर हमने कॉमन लिया है एक्स बाई लिया, तो वाई जो था वो तो निकल आया, और यहाँ पर एक्स जो है वो सॉरी, तो यहाँ पर एक्स जो है वो बाहर, एक्चुअली में पीछे एक मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से ये थोड़ा टर्म गड़बड़ कर रहा है, तो हम इसको मिस्टेक को करेक्ट कर देते हैं। अभी हमने ये यहाँ पर देखिए चल रहा था हमारा टर्म 2, देखिए जो ये हमारी पहली वाली है, फिर दूसरा वाला है, इसमें 2 जेड अपान वाई है, ये 2 वहाँ पर गलती से लिख दिया, 2x लिख दिया था, तो उसको करेक्ट करें कि इसको z करें, इसको यहाँ पर z है तो इस z को लिखना है हमको। तो जब यहाँ से y, जैसे बोला अभी हमने एक्स वाई कॉमन लिया, तो इस सेकंड वाले में से एक्स बाई, जब कॉमन बाई तो निकल गया, एक्स का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2zx बचेगा। ये हमारा थर्ड वाला कॉलम चल रहा है, ये हमारा सेकंड वाला कॉलम, ये फर्स्ट वाला कॉलम। अब यहाँ से भी एक्स जेड हमने जो बाहर अपान में से ले लिया है, तो ये वाले टर्म ये कॉलम में पहले ही बाहर हो गया था, 1 बचा इसी तरीके से जैसे इस वाले में किया है, और यहाँ से हम निकाल चुके जेड एक्स का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 टाइम्स एक्स वाई हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए जब हम एक्स वाई बाहर ले रहे हैं तो एक्स वाई सॉरी यहाँ पर एक्स जेड कॉमन ले रहे हैं तो एक्स जेड का इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का जिस क्योंकि z बाहर ले रहे हैं तो ठीक है, एक z बचेगा, लेकिन x भी दिया तो x का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का x अपान z बचा, और ब्रैकेट में पहले से मौजूद हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, उसको भी लिखेंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर ठीक से, और फिर ये डिटर्मिनेंट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ज़ीरो बनाएं, यानी 3 ऑर्डर हैं तो 2 ज़ीरो बनाएं, और 2 ज़ीरो हम सोच तो ये रहे थे कि यहाँ पर बनाएंगे, और लेकिन ये बेहतर जो है यहाँ पर लग रहे हैं, क्योंकि ये इस तरीके से सॉल्व करने में हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगी। तो इस वाले रो और इस वाले को रो को देखें तो ये जो है ये दोनों सेम हैं, सेम है, एक जैसे हैं, तो जब माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएंगे। उधर भी ज़ीरो आ सकते हैं, लेकिन ये टाइम क्वांटिटी उधर घटाएंगे जाके थोड़ी सी बड़ी है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो आप ये करें कि इस R3 में से R1 को माइनस कर दें, तो R3 में वैसे तो किसी भी तरीके से इसको सॉल्व, इसमें से भी इसको माइनस किया जा सकता है, इन दोनों को यहाँ पर भी ज़ीरो बना सकते हैं, 2 ज़ीरो बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कैलकुलेशन रहेगा कि हम R3 में से R1 को माइनस करें, बाकी R2 अनचेंज रहेगा, R1 भी अनचेंज रहेगा, जो एरो से पहले लिखा है R3 इसी में चेंज आएगा। तो हम बाकी सब नोट कर दे रहे हैं, जो ऑपरेशन होगा वो यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर जो बाहर चल रहा है उसमें देखिए एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, और इसकी पावर 2 पहले से है तो 4 पावर हो जाएगी, एक्स की 4 पावर हो जाएगी, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स ब्रैकेट चल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान एक्स की पावर 4 बाई और जेड। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट शुरू हो जाता है, और उसके टर्म जैसे कि हमने बताया शुरू के 2 रो तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे थे वैसे ही नोट कर देना है। 2zx 1xy माइनस एक्स और z एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर
वाई और 2 टाइम्स जेड एक्स। हाँ, तो फर्स्ट वाले रो को घटाना है थर्ड में से, तो इसमें से 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 बचेगा, तो 0 हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। उसके बाद इस वाले टर्म में से इसको माइनस करेंगे, ये दोनों भी लाइक टर्म में हैं और इक्वल हैं, तो कैंसिल होके 0 आ गया, ये दो तो 0 मिल गए हमको। अब इसमें से इसको इस वाले टर्म में से ये घटाना है, तो फिर इसको हम रफ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, रफ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो इस जो हमारे पास पहले से जो मौजूद है, यानी एक्स जेड, इस वाले टर्म में से इसको माइनस करना है, तो एक्स जेड माइनस एक्स अपान जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस करना है 2 टाइम्स जेड एक्स को, 2 टाइम्स जेड एक्स को माइनस करना है। तो ये सॉल्व होकर अब देख रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस है, फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस है वो हमारा फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस जो है वो 1 टाइम्स आ जाएगा माइनस का, जेड एक्स के बराबर आ जाएगा, और माइनस का एक्स अपान जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया ये। अब इनमें हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे एक्स कॉमन नज़र आ रहा है और अपान में जेड भी बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर वो माइनस भी कॉमन ले लें तो ये प्लस भी हो जाएगा, और जेड जो भी कॉमन लिया तो जेड को ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। एक्स तो बाहर चुका, माइनस बाहर लिया तो प्लस हो गया, और ये एक्स वन जेड पूरा बाहर हुआ माइनस के साथ, तो ये ब्रैकेट बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अगर ऑर्डर से लिखें तो माइनस एक्स अपान जेड इज इक्वल टू एक्स को पहले लिख लें, फिर वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर को लिख दिया। तो इसको हमने जैसे कि यहाँ पर ऑपरेशन किया है कर सकते हैं, तो इसमें अभी जो सॉल्व किया वो वैल्यू रख देंगे, माइनस करके हमने अलग से दिखा दी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ये हमारा थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का जो थर्ड रो थर्ड कॉलम में एलिमेंट ऑपरेशन करके आए वो हो गया। अब इस थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को सेकंड ऑर्डर में बदलना बहुत आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ज़ीरो जो है वो हमको 2 ज़ीरो मिल गए एक ही रो में, तो जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरो मिले उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आसानी रहेगी। वैसे तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में भी इसको हम एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन आसानी रहेगी, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, से एक ही बार में सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट मिल जाएगी। उसके लिए हम इस R3 के टर्म में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहले से मौजूद है उसको लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और अपान एक्स बार 4 बाई जेड। उसके बाद हम यहाँ पर इस टर्म को देखेंगे, इसका साइन को चेक कर लें, क्योंकि ये लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है और लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू खुद अपने आप में निगेटिव है, माइनस का एक्स अपान जेड, इसका अपना साइन पॉजिटिव होता है। तो इस टर्म को पहले लिखा जाता है, उसके बाद में इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का, और वो मिलता है ऐसे कि इस टर्म इस वाले रो के अकॉर्डिंग इस टर्म का कर रहे हैं, तो इसको रो को छुपा लें और इस कॉलम को छुपा लें, यानी इस एलिमेंट से आने वाले रो को कॉलम को छुपाने के बाद जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है ये सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हो जाएगी। इसी को हम पीछे नीचे नोट कर रहे हैं, 1 1 और इधर 2xy और एक्स वाई माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर अपान वाई, ये वैल्यू होगी। अब जो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आया है इससे हम कुछ कॉमन नॉर्मल लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाता है, 1 का इसमें इंटू हो जाएगा और इसका इसमें सॉल्व कर लेंगे, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो सॉरी, अगले पेज पे देख रहे हैं, पहले तो ये वाला माइनस साइन हम यहाँ पर साइड से कर देंगे, और बाकी ये दोनों फैक्टर एक ही जैसे हैं तो होल भी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जेड का भी स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी हम लिख लेंगे, कैंसिल बाद में करेंगे, तो ये आप कर सकते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान में एक्स की पावर 4 और वाई और यहाँ पर जेड, और एक्स की एक पावर बची हुई है वो लिख दें, और बाकी तो हो गया। डिटर्मिनेंट था उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे कि पहले बताया था हमने कि इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इस वाले ब्रैकेट में इसमें हो जाएगा, इसको एक क्वांटिटी मान लें, यहाँ से हम करली ब्रैकेट में बदल लें इसको फ्लावर ब्रैकेट में, तो 1 का इंटू जब इसमें होगा तो यही वैल्यू रहेगी, यानी एक्स वाई माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान वाई
और फिर माइनस होता है साइन, इसका इंटू इसमें, माइनस 1 का इंटू इसमें, 1 का इंटू हो जाएगा 2xy में हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और हम अपना रिज़ल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, हमको वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करने के बाद। तो देखें एक्स की एक पावर ये कम कर दें, 4 है तो 3 पावर ही रह जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल है स्क्वायर अपान 3yz, और यहाँ पर जो बच्चा है एक्स बाई 1 का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी एक्स बाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर अपान वाई और माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई। तो देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 2 टाइम्स 1 टाइम्स, तो माइनस का 1 टाइम्स बचेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर अपान एक्स क्यू बाई जेड, और माइनस का एक्स वाई माइनस का ये वाला, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, दो में से एक माइनस हो गया, एक बचेगा, बड़ी क्वांटिटी माइनस की थी तो माइनस का बचा ये। अब ये देखना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर अपान वाई, और फिर इसमें हमें देख रहे हैं कि x कॉमन भी मिल जाए, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, इसलिए देखिए माइनस एक्स कॉमन लें, तो माइनस कॉमन लेने पर दोनों तरफ से ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर अपान एक्स क्यूब प्लस वाई जेड, और x हमने बोला था कॉमन ले लेंगे, तो बच रहा है वो प्लस का बचेगा y, वो प्लस का ही बचेगा, बाकी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर होल अपान में y, और ये x की एक पावर और इसमें से कम हो जाएगी, 2 पावर बचेगी अगली स्टेप में, और यहाँ पर हमारा z का चल रहा था स्क्वायर, वो यहाँ पर गलती हो रही है, जो हमने यहाँ पर देखिए वाई जेड का मल्टीप्लाई करा तो वो यहाँ पर z का स्क्वायर नहीं लिखा है, तो z का स्क्वायर लिख लेना चाहिए, z का स्क्वायर चल रहा है ये, तो z स्क्वायर हो रहा है ये, तो z स्क्वायर पहले से है, तो एक पावर हमने जैसे बोला कि इसकी x की कम हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर होल पावर 2 और वाई जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 अपान एलसीएम लेते हुए वाई को एलसीएम लेंगे तो वाई का इंटू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, वाई में भी वाई का इंटू हो जाएगा, देखेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो अपान में हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, अपान में एक्स स्क्वायर है वाई और वाई का इंटू हो गया वाई स्क्वायर हुआ जेड स्क्वायर, और इसे ऑर्डर से लिखने हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये 2 पावर ये और एक और ये मिल के 3 पावर इसकी हो जाएगी, क्योंकि ये लाइक टर्म है और इंटू हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस जब सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इस तरीके से हमारा सवाल कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।